So please read the question. What is the question? A previous judgment cited by the court to decide on a similar set of facts is called as. क्या है? Previous judgment cited by the court to decide similar set of facts is called what? Is called, what is the answer? Is called precedent. Is called precedent. Precedent का मतलब क्या है? Previously decided judgment. So what is precedent? Previously decided judgment. Previously decided judgment. Or the concept, the process, or the rule of deciding current cases, based on precedents, is called as stare decisis. So what is the precedent? Precedent किसको बोलते हैं? Previously decided judgment. प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट. और जो रूल जो बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट के बेस पे आज के केसेस सॉल्व करना, उसको क्या बोलते हैं? Decide diseases. Stay diseases. स्टेरी डिसाइसिस. क्या बोलेंगे इसको? Stare decisis. स्टेरी डिसाइसिस. समझ में आ गया? It is called as stare decisis. सेकंड समझ में आ गया? सो व्हाट इज प्रेसिडेंट? Previously decided judgment. और प्रेसिडेंट के बेस पे जो जजेस डिसाइड करते हैं केसेस, उसको क्या बोलते हैं? Stare decisis. स्टेरी डिसाइसिस. Decisive. डिसाइसिस. Stare decisis. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, रेशियो. सेकंड ऑप्शन क्या है? रेशियो डेसिडेंडाई. व्हाट इज रेशियो डेसिडेंडाई? व्हाट इज इट इज द रीजन फॉर अ कोर्ट्स decision. So what is ratio decidendi? It is the reason for court's decision. माने जो कोर्ट डिसीजन ले रहा, तो हमेशा क्या करता कोर्ट? अपने कानून में लिखे हुआ है कि whenever any court takes any decision, he has to give reasons. रीजंस के बगैर कौन सा भी आप जजमेंट नहीं बनता. समझ में आ रहा? तो उसको बोलते हैं, रीजंस को क्या बोलेंगे आप? रेशियो डेसिडेंडाई. सो व्हाट इज रेशियो डेसिडेंडाई?
Reason for court's decision. It is the reason for court's decision. Decision. नेक्स्ट है obiter dicta. What is obiter dicta? What is obiter dicta? The oral observations made by court so what is obiter dicta? Oral observations made by court. और इसका नेचर क्या रहता? It is not binding. So what is obiter dicta? Oral observations made by the judges during the court proceedings. क्या ये बाइंडिंग है ना नॉन बाइंडिंग है? Non-binding. It is not binding. ठीक है. डिक्टा का मतलब क्या है? कमेंट और सजेशन और ऑब्जर्वेशन. नॉर्मली पूछ लेता डिक्टा. व्हाट इज डिक्टा? कमेंट, ऑब्जर्वेशन और सजेशन. समझ में आ रहा? यस और नो? क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. जुडिशियल डिक्टा का मतलब ऑब्जर्वेशंस. जुडिशियल डिक्टा कुछ भी नहीं रहता, याद रखो. खाली तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज प्रेसिडेंट? Previously Previously decided judgment. Decided judgment. व्हाट इज रेशियो डिसिडेंडाई? It is The the reason reason for for a court's court decision. decision. व्हाट इज जुडिशियल डिक्टा? कुछ भी नहीं है जुडिशियल डिक्टा. ऑबिटर डिक्टा क्या है? Oral The observation made by oral the court. observations. ओरल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द कोर्ट. इट इज नॉन बाइंडिंग. ठीक है. ओके. क्लियर है पॉइंट? Yes. यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज रीड द क्वेश्चन. Dash is known as the fifth wheel of the Indian Constitution. व्हाट आर द ऑप्शंस? Cabinet Ministry, Judiciary, Finance Commission, Niti Aayog. So which is known as fifth wheel of the Indian Constitution? नीति आयोग. Niti Aayog. व्हाट इज नीति आयोग? फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? National Institute for Transforming India. फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सो व्हाट इज नीति? National Institution for Transforming India. It replaced what? Planning Commission. और कब एग्जिस्टेंस में आया ये? 2015. 2015. हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग?
Prime Minister. Prime Minister. Who is the chairman of Niti Aayog? Prime Minister. Prime Minister. It is a extra constitutional body. कौन सी बॉडी है ये? Extra constitutional body. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब मेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट। और एक चीज क्या याद रखना, हु इज द करंट सीईओ और हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सुमन बेरी। करंट करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग क्या नाम है? Suman Beri. फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग के बारे में इतनी चीजें मालूम रखना आप। इट इज द फिफ्थ व्हील ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कब एस्टेब्लिश हुआ ये? 2015. 2015। हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? Arvind Panagaria. Panagaria. अरविंद। हु इज द करंट? Suman Beri. Saman Beri. सुमन बेरी। इतना याद रखो काफी। नेक्स्ट कैसा भी आप क्वेश्चन आते, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? फाइनेंस कमीशन First क्या है? तो फाइनेंस कमीशन क्या है? constitutional body. कौन सा आर्टिकल है? Article 280. अभी तक कितने करंट फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा? Sixteen. 16। एंड हु इज द चेयरमैन? Arvind Panagaria. तो अरविंद पनागड़िया। अभी कहाँ देखे इनको? Vice Chairman of Niti Niti Aayog. Aayog. Arvind Panagarya is the first vice chairman of Niti Aayog. Now he is the current chairman of 16 Finance Commission. याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता आपको। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Okay. So judiciary, you already know. कैबिनेट मिनिस्ट्री मालूम है। सो आपको जो इंपॉर्टेंट है ना, एक नीति आयोग है, एक फाइनेंस कमीशन है। इतने पॉइंट याद रखो, इट्स इनफ। ठीक है, नेक्स्ट। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन।
An eye for an eye and a tooth for a tooth relates to dash theory. माने बदला, आंख फोड़े तो आंख देना, दांत तोड़े तो दांत देना। तो कौन सी थियरी में आता, कौन सी थियरी में आएगा ये? Retributive. थियरीज ऑफ पनिशमेंट, थियरीज ऑफ पनिशमेंट। कितने थियरीज है, थियरीज ऑफ पनिशमेंट कितने हैं? 4। रिफॉर्मेटिव थियरी, रिफॉर्मेटिव का मतलब क्या है? पर्सन रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड चेंजेस फ्रॉम विद इन, उसको बोलते हैं रिफॉर्मेटिव थियरी। जब इतना हो गया तो आप उसको छोड़ देना। डिटरेंट थियरी, इट इज द, it is it keeps, it keeps the offenders, it keeps people, it keeps the people or individuals it stops, it stops the individuals from doing something wrong. So what is deterrent theory? It stops the individuals from doing something wrong. Retributive theory, revenge. Preventive theory, it separates the criminals from society. Preventive theory क्या बता रहा? It separates the criminals from the society and prevents them from committing any crime. समझ आ गया? So what is preventive theory? It separates the criminals from the society and prevents them from committing any crime. वही deterrent theory क्या है? It stops the individuals for doing something wrong. So deterrent theory और preventive theory में सिर्फ इतना फर्क है, डिटरेंट थियरी में इंडिविजुअल्स को सोसाइटी से अलग नहीं करते, इंडिविजुअल सोसाइटी में ही रहते, बट उसको उन्हें सजा देके के रुक जाता। बट प्रिवेंटिव थियरी में ये है कि सोसाइटी को और क्रिमिनल्स को अलग अलग कर देते। समझ आ रहा? ठीक है, ये सब। Yes, sir. So there are 4 theories of punishment. One is reformative theory, deterrent theory, retributive theory, and preventive theory. Next question. Please read the next question.
Who propounded the legal theory called utilitarian individualism? Bentham. बेंथम। सो ये क्या है? सो क्या कौन कौन दिया थियरी है? यूटी Bentham. जेरेमी बेंथम बोलते उसको। हाँ। इधर देखो, यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म की थियरी कौन दिया? Bentham, sir. बेंथम। ये तो याद रखो, काफी है। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Austin theory. सेकंड क्या है? Father ऑस्टिन। of ऑस्टिन कौन सी analytical थियरी? school. फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ Father of जूरिस। analytical school of jurisprudence. सेकंड ऑप्शन क्या है? Salmon theory. सालमन। नामा है इन लोग का, थियरी नहीं है, सालमन है। जूरिस के नामा है ये। उन Okay. लोगों का थियरी। सर ऑस्टिन भी नाम ही है क्या? जी हाँ, ऑस्टिन भी नाम है, सालमन भी नाम है, टेलर भी नाम है, बेंथम भी नाम। ओके। ठीक है, ऑस्टिन की खासियत क्या है? कौन सा स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दिया है नहीं? ऑस्टिन फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। सालमन की खासियत क्या है? पिजन होल थ्योरी। रीजनल थियरी ऑफ लॉ ऑफ थॉट्स। लॉ ऑफ थॉट्स। टेलर का कुछ भी नहीं है, यू कैन जस्ट स्किप। और बेंथम क्या दिया? बेंथन इज यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म। अब इतना याद रख लो, काफी है। जब आप एलएल में जाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Citizenship Amendment Act 2019 CAA intends to protect तो क्या है ऑप्शंस? options: six minority communities from two countries, six minority communities from three countries, five minority communities from two countries. Similarly, five minority communities from three countries. Immigrants from three countries: ABB, Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. ऐसा याद रखो, ABC, तीन कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को अपन सिटीजनशिप दे रहे हैं। ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड Pakistan. पाकिस्तान। ठीक है। और कितने, कौन से रिलीजियंस को दे रहे हैं? कौन से रिलीजियंस को है? पहले हिंदूस, हिंदुइज्म। फिर आप आ जाओ, सिक्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस एंड क्रिश्चियंस।
सो कितने रिलीजन्स है? Six. और कितने कंट्रीज है? 3 countries. three, और कौन से बेसिस पे दे रहे? कौन से बेसिस पे? बेस्ड ऑन व्हाट? प्लीज सी द चैट एंड टेल मी। मैं नया नहीं पूछूं कुछ भी आपसे, आंसर दे के ही पूछ रहा हूँ आपसे। Based on religious prosecution or fear of religious prosecution. परसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको। बेस्ड ऑन Yes, sir. Persecution. परसिक्यूशन माने आपको जान से ही मार देने का खतरा। प्रोसिक्यूशन माने आप पे क्रिमिनल केस चलाना, मीनिंग बदल जाती है उसमें। तो कौन से बेसिस पे दे रहे? Religious persecution or fear of religious persecution. मतलब क्या है उसका रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब? आप वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं बोल के आपको जान से ही मार देने के खतरे को बोलते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन। समझ में आ रहा? यस और नो? तो सी ए क्या है? व्हाट इज सी ए? Citizenship Amendment Act 2019. सिटीजनशिप हमने 2019। और कौन से पार्ट में है सिटीजनशिप? Part 2. पार्ट टू। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? Article 5 to 11. आर्टिकल 5 to 11। अभी तो इतना है, याद रखो, इट्स मोर देन इनफ। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 कितने कंट्रीज के लोगों को सिटीजनशिप दे रहा? 6. कंट्रीज कंट्रीज। Countries 3. और कितने कम्युनिटीज को? 6 communities. 6 कम्युनिटीज। कौन से? Hinduism, कौन से? Sikh, हम्म हम्म Sikhs, Buddhists, Jain, हम्म Parsis, हम्म and Christians. हम्म। ठीक है, याद रखो, इतना ही पूछता, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप पूछा तो और एक चीज पूछ सकता। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, कब पास हुआ? 2019. दिसंबर 2019 में पास हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है इसका आंसर? 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम 3 थ्री countries. कंट्री। ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। When two or more persons fighting in the public place disturbs the public peace, they are said to commit dash affray. तो एफ्रे। Affray. तो दो दो आदमियां लड़ ले रहे, चीखा मार के पुकार लेके लड़ ले रहे रोड पे, तो पब्लिक प्लेस पे लड़ ले रहे, तो उसको क्या बोलेंगे आप?
एफ्रे, उसको बोलते एफ्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट? assault, libel, conspiracy. assault, what is assault? What is assault? क्या है? assault, what is assault? gesture to cause, gesture to cause apprehension in another person's mind that criminal force will be used against them। क्या बोलेंगे इसको? सो व्हाट इज असॉल्ट? जेस्चर का मतलब है इशारा,